Hello everyone, I am Muhammad Salim and welcome to the channel Right Directions by Salim. This is part second of the video where I cover some important notes for GS which cover some political and economic aspects. So this is part second, so let's see. Parliamentary system. Article 74 and Article 75 deals with the parliamentary system at center, and Article 163 and Article 164 in the state. आर्टिकल 74-75 सेंटर की पार्लियामेंट्री सिस्टम से डील करता है और आर्टिकल 163 और 164 स्टेट की जो पार्लियामेंट्री सिस्टम आते हैं जिसमें ये असेंबलीज आते हैं उससे डील करता है. ठीक है. The parliamentary system of government is the one in which the executive is responsible to the legislature for its policies and acts. ठीक है. पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है? वो गवर्नमेंट का सिस्टम जिसमें एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल होता है लेजिस्लेचर के लिए, लेजिस्लेचर में जो भी अपनी पॉलिसीज़ और एक्ट्स बनाता है. The presidential system of government is the one in which the executive is not responsible to the legislature for its policies and acts and is constitutionally independent of the legislature in respect of its term of office. तो प्रेसिडेंशियल और ये पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या क्या फ़र्क होता है ये आप अच्छी तरह मतलब कि आप याद रखना इसको. ठीक है. The parliamentary government is also known as cabinet government or responsible government or Westminster model of the government and is prevalent in Britain, Japan, Canada, India, etc. Parliamentary government. Okay, ठीक है. The presidential government, on the other hand, is also known as non-responsible or non-parliamentary or fixed executive system. Means presidential government also known as non-responsible government or non-parliamentary government or fixed executive system of government and is prevalent in USA, Brazil, Russia, Sri Lanka, etc. Okay. Now let's see some features of parliamentary government. It includes number one, nominal and real executives, then majority party rule, then collective responsibility as per Article 75. Fourth is political homogeneity. Fifth one is double membership. Sixth one is leadership of the PM. Seventh, dissolution of the lower house. Eighth is secrecy by ministers. The term political homogeneity means there is harmony in the policies of the government if the government is formed by more than one political parties. ठीक है. Now merits of the parliamentary system. merits में आगे क्या? Harmony between legislature and executive. Number second, responsible government. Number third, prevents despotism. Number fourth is ready alternative government. Means in case the ruling party loses its majority, the head of the state can invite the opposition party to form the government. This means an alternative government can be formed without fresh elections. Hence, Dr. Jennings says the leader of the opposition is the alternative prime minister. Okay. Fifth merit of parliamentary system is wide representation. Okay. Now let's see some demerits of parliamentary system. Number one, unstable government because there is opposition. Second, no continuity of policies. Okay. Third one is dictatorship of the cabinet. Fourth is parliamentary system is against separation of powers. Then fifth one is government by amateurs. Now reasons for adopting parliamentary system. Reasons for adopting parliamentary system. Number one इसमें आगे क्या? Familiarity with the system. हाँ, क्या क्या रीजंस हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम अडॉप्ट करने में इंडिया में? क्या क्या रीज़न थे? नंबर वन, फेमिलियरिटी विद द सिस्टम. ठीक है, क्योंकि अंग्रेज़ थे उधर भी ऐसा ही सिस्टम था. ठीक है ना. सेकंड, प्रेफरेंस टू मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है. थर्ड, नीड टू अवॉइड लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव कन्फ्लिक्ट्स. फोर्थ, नेचर ऑफ द इंडियन सोसाइटी. दीज फोर वर द रीजन्स फॉर अडॉप्टिंग पार्लियामेंट्री सिस्टम बाय इंडिया. Now let's see some other point. The Indian federal system is based on the
Canadian model and not on the American model. Means Indian federal system is based on Canadian model and not on the American model. Okay. Now features of the federal system. Number 1, dual polity. Number 2, written constitution. Number 3, division of powers. Number 4, supremacy of the constitution. Number 5, rigid constitution. Number 6, independent judiciary. Number 7, bicameralism. So ये फेडरल फेडरल सिस्टम के कुछ फीचर्स हैं, ठीक है. नाउ फीचर्स ऑफ द यूनिटरी सिस्टम. यूनिटरी सिस्टम में क्या क्या फीचर्स होते हैं? नंबर 1, स्ट्रांग सेंटर. नंबर 2, स्टेट्स नॉट इनडिस्ट्रक्टिबल, ठीक है ना, मतलब स्टेट जो है वो इनडिस्ट्रक्टिबल नहीं है, उनको डिस्ट्रक्ट करा जा सकता है. 3rd, यूनिटरी सिस्टम का फीचर है सिंगल सिटीजनशिप. 4th, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. 5th, नो इक्वालिटी ऑफ स्टेट रिप्रेजेंटेशन. 6th, emergency provisions are there. 7th, single citizenship is there. 8th, integrated judiciary will be there. 9th feature of unitary system is all India services. 10th feature is integrated audit machinery. 11th feature, parliament's authority over state list. 12th, appointment of governor. 13, integrated election machinery. 14, veto over state bills. Let's see some other points from these notes. Article 242 to Article 245 to 255, 245 से 255 आर्टिकल तक in part 11th of the constitution deal with legislative relations between the center and the states. Like any other federal constitution, Indian constitution also divides the legislative powers between the center and the states with respect to both the territory and the subjects of the legislation. There are 4 aspects in center-state legislative relations. ठीक है. Number 1, territorial extent of central and state legislation. First one is territorial extent of central and state legislation. Number 2, distribution of legislative subjects. 3rd, parliamentary legislation in the state field. Number 4, central control over legislation. पहला आ गया. हाँ, 4 एस्पेक्ट्स हैं सेंटर स्टेट लेजिस्लेशन में. एक बार रिपीट करता हूँ कि क्या क्या रिलेशंस हैं सेंटर और स्टेट लेजिस्लेशन के दरमियान में. कि टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स. 3rd, parliamentary legislation in the state field. 4th, center's control over legislation, states legislation. Let's see some other points from these notes. The 42nd Amendment Act of 1976 transferred 5 subjects to concurrent list from state list, and that is education, forest, weight and measures, protection of wild animals, birds, and 5th, administration of justice, constitution, and organization of all courts except the Supreme Court and the High Court. ठीक है. ये वाले सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट से उठा के कंकरेंट लिस्ट में डाल दिए थे 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 का. ठीक है. नेक्स्ट हेडिंग हम देख लेते हैं. नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं. पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन द स्टेट फील्ड. स्टेट फील्ड में पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन क्या क्या होती है. ठीक है. The Constitution empowers the Parliament to make laws on any matter enumerated in the state list under the following 5 extraordinary circumstances. कि कुछ नीचे ये 5 एक्स्ट्राऑर्डिनरी केसेस दिए गए हैं ऐसी सिचुएशन में जो पार्लियामेंट है सेंटर की वो स्टेट लिस्ट वाले मैटर्स पर लॉ बना सकती है. और ये कौन सी सर्कमस्टेंसेस होती हैं जहाँ पे ये कर सकता है. वो है नंबर 1, व्हेन राज्यसभा पासिस अ रेजोल्यूशन. Number 2, during a national emergency. Number 3, when states make a request. Number 4, in order to implement international agreements. Number 5, during president's rule. Now so let's see administrative relations between the center and states, and these are mentioned in Article 256 to 263, 256 से 263 में in part 11th of the Constitution. ठीक है. 256 है प्रेसिडेंट्स रूल. ठीक है. अंडर आर्टिकल 263 द प्रेसिडेंट कैन इस्टेब्लिश एन इंटर स्टेट काउंसिल
to investigate and discuss the subject of common interest between the center and the state. आर्टिकल 263 में प्रेसिडेंट जो है इंटर स्टेट काउंसिल बना सकता है ताकि इन्वेस्टिगेट और डिस्कस करा जाए क्या ऐसे सब्जेक्ट्स जिनका कॉमन इंटरेस्ट हो सेंटर और स्टेट के दरमियान में, आर्टिकल 263 के अंदर 263 के तहत, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि आर्टिकल 312 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑथोराइजेज द पार्लियामेंट टू क्रिएट अ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज ऑन द बेसिस ऑफ राज्यसभा रेजोल्यूशन टू दैट इफेक्ट सोफा, ठीक है। 312 आर्टिकल Thus, the all India services violate the principle of federalism under the constitution by restricting the autonomy and patronage of the states, but they are supported on the ground that they help in maintaining a high standard and administration in the center as well as in the state. ये एक एक्सेप्शन है जिसकी बेस पे जो है ये करी जाती हैं, वैलिड करार दी जाती हैं, वरना ये फेडरल के उस स्ट्रक्चर को जो है वायलेट करती हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये है कि जिसकी बेस पे ऑल इंडिया सर्विसेज को वैलिड करार दिया वो ये है कि दे हेल्प टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम थ्रू आउट द कंट्री। तीसरा ये है कि दीज ऑल इंडिया सर्विसेज दे फैसिलिटेट लाइजन कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड जॉइंट एक्शन on the issues of common interest between the center and the state. Now let's see some other provisions between the center and the states, ठीक है। The constitution contains the following provisions which enable the center to exercise control over the state administration. ये कौन कौन से provisions हैं? नंबर 1 आर्टिकल 355 355 imposes two duties on the center, ठीक है। किसके लिए? नंबर 1 to protect every state against external aggression and internal disturbance, and second to ensure that the government of every state is carried on in accordance with the provisions of the constitution, ठीक है। ये दो वजह हैं, ठीक है। तो उसमें एक आर्टिकल 355 जिसके ये दो प्रोविजंस हमने कवर करे, और दूसरा प्रोविज़न है गवर्नर्स अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अपनी मर्ज़ी से गवर्नर जो है वो अपॉइंट करेगा, मतलब कि अपनी मर्ज़ी, मतलब कैबिनेट की मर्ज़ी से। तो ये दो प्रोविजंस हैं विच इनेबल द सेंटर टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। आर्टिकल 355 और गवर्नर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। Now let's see some financial relations between the center and states, and these are mentioned in articles 268 to 293 in part 12th of the constitution। 268 से 293 तक हैं पार्ट 12th इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें ये फाइनेंशियल रिलेशंस हैं, ठीक है ना। दीज इंक्लूड द फॉलोइंग, इनमें ये चीज़ें कवर होती हैं। नंबर 1 एलोकेशन ऑफ टैक्सिंग पावर्स, नंबर 2 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यूज़, नंबर 3 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यूज़, नंबर 4 ग्रांट्स इन एड टू द स्टेट्स, नंबर 5 स्टैट्यूटरी ग्रांट्स, नंबर 6 डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स, नंबर 7 अदर ग्रांट्स, नंबर 8 प्रोटेक्शन ऑफ स्टेट्स इंटरेस्ट, नंबर 9 borrowing by the center and the state, 10th intergovernmental tax immunities, नंबर 11th effects of emergencies, ठीक है। ये कवर होते हैं ये जो फाइनेंशियल रिलेशंस हैं इनमें। तो ये रिलेशन फाइनेंशियल जो हैं 268 से 293 पार्ट 12th में मेंशन है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन देखें सेंटर स्टेट का, ये जो मतलब टैक्सेस वगैरह का, ठीक है ना। टैक्सेस लेविड बाय द सेंटर बट कलेक्टेड बाय द अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट्स, ठीक है। उनमें कौन कौन सा आ गया? स्टैम्प ड्यूटीज़ आ गई, ठीक है। तो कुछ और हैं, ये आर्टिकल 268 में मेंशन है, ठीक है, कि वो टैक्सेस जो कि सेंटर लगाता है लेकिन कलेक्ट और अप्रोप्रिएट करता स्टेट, 268 में है, ठीक है। उसके बाद है कि सर्विसेज टैक्स लेविड बाय द सेंटर बट कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय द सेंटर एंड द स्टेट्स, ये आर्टिकल 268A में है, 268A में है कि सेंटर लगाता है टैक्स लेकिन कलेक्ट और अप्रोप्रिएट दोनों करते हैं, सेंटर भी स्टेट भी, ठीक है। तीसरी कैटेगरी है कि टैक्सेस लेविड एंड कलेक्टेड बाय द सेंटर बट असाइन टू द स्टेट्स, आर्टिकल 269, ठीक है। 269 के तहत
टैक्स लगाता और कलेक्ट करता है सेंटर, लेकिन स्टेट को साइन करता है 269 आर्टिकल के तहत, ठीक है ना, जिसमें आ जाता है फॉर एग्जांपल टैक्सेस ओवर इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स, ठीक है। उसके बाद फोर्थ कैटेगरी है टैक्सेस लेविड एंड कलेक्टेड बाय द सेंटर बट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, आर्टिकल 270, आर्टिकल 270 370 नहीं 270 के तहत सेंटर जो है कलेक्ट करता है और लगाता है, कलेक्ट करता है, ठीक है, लेकिन दोनों सेंटर स्टेट दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है। ये डी कैटेगरी में आ गए, ठीक है ना। अच्छा, द मैनर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेट प्रोसीड्स ऑफ दीज टैक्सेस एंड ड्यूटीज इज प्रिस्क्राइब्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिफ्थ कैटेगरी कौन सी थी कि सरचार्ज ऑन सर्टन टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ फॉर पर्पसेस ऑफ द सेंटर, आर्टिकल 271 के तहत, ठीक है। सरचार्ज ऑन सर्टन टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ फॉर पर्पसेस ऑफ द सेंटर, ठीक है, आर्टिकल 271। अच्छा, नेक्स्ट कैटेगरी मतलब कि एफ के अंडर ये है कि टैक्सेस लेविड एंड कलेक्टेड एंड रिटेन्ड बाय द स्टेट्स, लगाती और कलेक्ट करती है स्टेट्स और रखती भी स्टेट्स, ये ठीक है, ये एक एफ कैटेगरी आ गई। नाउ सी सम अदर पॉइंट्स, ग्रांट्स इन एड टू द स्टेट्स, दीज आर सेपरेट फ्रॉम टैक्स शेयरिंग, टैक्स शेयरिंग के अलावा कुछ ग्रांट्स इन एड भी स्टेट्स को मिलती हैं। दो टाइप्स के होते हैं, स्टैट्यूटरी ग्रांट्स और डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स। स्टैट्यूटरी ग्रांट्स देखेंगे आर्टिकल 275 एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू मेक ग्रांट्स टू द स्टेट्स विच आर इन नीड ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड नॉट टू एवरी स्टेट, ठीक है, ये हो गया स्टैट्यूटरी ग्रांट्स, ठीक है ना। दीज आर गिवन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पे दी जाती हैं। ये 275 के तहत जो है ये पार्लियामेंट को एम्पावर करता है स्टैट्यूटरी ग्रांट्स के लिए, ठीक है। हाँ, टू द स्टेट्स विच आर, जिनको फाइनेंशियल असिस्टेंट की ज़रूरत होती है और ना कि हर स्टेट को नहीं मिलती, सिर्फ उन्हीं को जिनको ज़रूरत होती है, कौन, स्टैट्यूटरी ग्रांट्स, ठीक है। डिस्क्रिशनरी ग्रांट देखें तो ये आर्टिकल 282 जो है वो एम्पावर करता है सेंटर और स्टेट्स को कि टू मेक एनी ग्रांट्स फॉर एनी पब्लिक पर्पस इवन इफ़ इट इज़ नॉट विद इन देयर रिस्पेक्टिव लेजिस्लेटिव कम्पिटेंस, अगर उनकी लेजिस्लेटिव कम्पिटेंस में नहीं आता है तब भी, अगर जैसे पब्लिक पर्पस के लिए करना हो तो ये जो है आर्टिकल 282 है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स के लिए जो है वो एम्पावर करता है। हाँ, इसी में ये है कि ये डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स का, अंडर दिस प्रोविजन द सेंटर मेक्स ग्रांट्स टू द स्टेट्स ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द प्लानिंग कमीशन, नाउ नीति आयोग विच इज़ द एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है। नोटेबली डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स फॉर्म द लार्जर पार्ट ऑफ सेंट्रल ग्रांट्स टू द स्टेट, सेंटर की जो ग्रांट स्टेट को मिलती हैं उनमें डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है। लेट्स सी नेक्स्ट पॉइंट, इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट, इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट, ठीक है ना। आर्टिकल 262 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड, आर्टिकल 262 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स, ठीक है ना। इट मेक्स टू प्रोविजन, नंबर 1, पार्लियामेंट में बाई लॉ प्रोवाइड फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ एनी डिस्प्यूट और कंप्लेंट विद रिस्पेक्ट टू द यूज, डिस्ट्रीब्यूशन and control of waters of any interstate river and river valley, number 1. Number 2, Parliament may also provide that neither the Supreme Court nor any other court is to increase jurisdiction in respect of any such dispute or complaint, ठीक है। अच्छा, under this provision the Parliament has enacted 2 laws, number 1 the River Boards Act 1956 और दूसरा है the Interstate Water Dispute Act 1956। रिवर बोर्ड्स एक्ट्स 1956 और इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956, ये दो जो हैं पार्लियामेंट ने लॉ बनाए इसके रिलेटेड। नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरस्टेट कौंसल, ठीक है ना। आर्टिकल 263, आर्टिकल 263 contemplates the establishment of an interstate council to effect coordination between the states and between center and states, ठीक है। The council's function is to inquire and advise upon interstate disputes. This function is complementary to the Supreme Court's jurisdiction under Article 131.
टू डिसाइड अ लीगल कंट्रोवर्सी बिटवीन द गवर्नमेंट्स, ठीक है। मीन्स द काउंसिल फंक्शन टू इंक्वायर एंड एडवाइज अपॉन इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स इज कम्प्लीमेंट्री टू द सुप्रीम कोर्ट्स जुरिस्डिक्शन अंडर आर्टिकल 131 टू डिसाइड अ लीगल कंट्रोवर्सी बिटवीन द गवर्नमेंट्स, ठीक है। द काउंसिल्स कैन डील विद एनी कंट्रोवर्सी whether legal or non-legal, but its function is advisory, unlike that of the court which gives a binding decision. अच्छा, next point is under article 263 the president has established the following councils. Number 1 Central Council of Health, number 2 Central Council of Local Government and Urban Development, ये दो बनाई हैं, ठीक है। उसके बाद द सरकारिया कमीशन stressed upon establishing permanent interstate council under article 263, किसने, सरकारी कमीशन ने ये बोला था। नेक्स्ट पॉइंट इज in pursuance of the above recommendations of the सरकारिया कमीशंस द जनता दल government headed by VP Singh established the interstate council in 1990. It consisted of number 1 PM as the chairman, CMs of all states, CMs of UTs having legislative assemblies. 4th administration of UTs not having legislative assemblies. 5th governors of state under president's rule. 6th last point कि 6 central cabinet ministers including the home minister to be nominated by the prime minister. तो अब हम जो है आगे थर्ड पार्ट बनाएंगे जिसमें हम इन नोट्स के जो हैं बाकी टॉपिक्स जो हैं वो हम पढ़ेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।